Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel once again. So today we are starting with the MCQ series where I am picking up 10 MCQ from each chapter. और ये 10 MCQs वो होंगे जो मोस्टली आस्क्ड MCQs होते हैं. तो इस तरीके से क्या होगा, आपका इनिशियली हर चैप्टर के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको रीजंस मिल जाएंगे आंसर्स के. सो इन द सेम वे हर चैप्टर के मैं और भी MCQs ऐड करती जाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज correct about ERV? It is expiratory reserve volume. So you have to choose the correct option. Its value is less than TV. आपको अगर पता हो तो TV जो होता है that is 500 TV होता है, एंड अगर ERV की वैल्यू आपको याद हो इट इज समवेयर 1000 to 1100 ml. फाइन. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट्स वैल्यू इज लेस देन TV, मतलब रॉन्ग ऑप्शन है ये. देन इट्स वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू RV. तो RV की जो वैल्यू होती है वो 1100 to 1200 होती है. सो ऑलमोस्ट इक्वल है. वी आर अग्रीइंग विद इट. देन नेक्स्ट इज ERV is equal to EC minus TV, where EC is the expiratory capacity and the TV is tidal volume. So now see here, अगर हम इसको इस तरीके से लें, EC is equal to ERV plus TV. So here we are at the right place, क्योंकि अगर आप इस टीवी को यहां पे मूव करेंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला है ERV प्लस TV. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. लास्ट वन इज 2 of the above is right. So our option will be D here. Now the next one is, in lungs there is definite exchange of ions between RBC and plasma. So removal of carbon dioxide from blood involves, if you remember, chloride shift. Then in chloride shift, from that you will get the answer. The first option is efflux of HCO3 ions from RBC, मतलब RBC में से ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएगा. Efflux of chloride from RBC, influx of bicarbonate ion in RBC, मतलब RBC के अंदर बाइकार्बोनेट आयन आ रहा है, and influx of chloride into RBC. So our option will be this one, that is the first, efflux of bicarbonate ions from RBC. तो ये हो गया हमारा first option. Next is amount of oxygen and carbon dioxide delivered by 100 ml of oxygenated blood to the tissues and 100 ml of deoxygenated blood to the alveoli respectively is. इसका आंसर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आपको अमाउंट याद रखना पड़ेगा कि 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट कैरीज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, एंड 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट कैरीज 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन. फोर्थ क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो a right shift in case of low partial pressure of oxygen, high partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide and less hydrogen ion concentration. तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ जाता है, राइट मतलब नीचे की तरफ आता है. जब वो राइट साइड में मूव हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से दूर जाएगा. It will not associate with hemoglobin, and this will happen only in one case, that is high partial pressure of carbon dioxide. So our option will be high partial pressure of carbon dioxide. You have to remember. तो ये जो राइट साइड में मूवमेंट है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के केस में होगा. सो आवर ऑप्शन विल बी सी. It is known that exposure to carbon monoxide is harmful to animals because, first option, it reduces carbon dioxide transport, it reduces oxygen transport, it
increases carbon dioxide transport, it increases oxygen transport. अगर आपको पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका ज़्यादा एफिनिटी, इट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसीलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन फर्स्ट प्रेफरेंस कार्बन मोनोऑक्साइड को देता है एंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करेगा. सो आवर ऑप्शन विल बी बी, इट रिड्यूसेस O2 transportation. Sixth question is CO2 dissociation from carbaminohemoglobin when carbon dioxide dissociates from carbaminohemoglobin when. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट होता है और ये होगा लंग्स के पास. लंग्स के पास पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग की बात करेंगे. सो when it happens when partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, partial pressure of oxygen is high and partial pressure of carbon dioxide is low, partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen both are equal, none of the above. So ये जो प्रोसेस हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनोहीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहा है, that will occur near the lungs and that happens when there is high partial pressure of oxygen and low partial pressure of carbon dioxide. This is also a conceptual question. अगर आप टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से रीड करेंगे तब आपको ये जो लाइन है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको मिलेगा. So just remember that. Next question. Okay, so this is one of my favorite question. So let's talk. From the following relationships between respiratory volume and capacities, mark the correct option. First, inspiratory capacity is equal to tidal volume plus residual volume. If you remember कि inspiratory capacity मतलब tidal volume plus होता है IRV, inspiratory reserve volume. So this option is incorrect. वाइटल कैपेसिटी इज, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना रिलेशनशिप्स के बारे में, तो हमें सबसे पहले एक क्विक वे है याद रखने का. सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिख लीजिए TIER, टीयर, दैट इज tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and residual volume. So I am writing it quickly. TV, IRV, ERV and it is residual volume. अब आती है कैपेसिटीज के बारे में. सो व्हाट यू हैव टू डू, कैपेसिटीज का सबसे पहले आप लिख लो EC, IC, then you have to write EC, then functional residual capacity FRC, फिर vital capacity, फिर total lung capacity. तो इसके लिए आपको लिखना है EC मतलब टाई, T टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV. EC का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब T एंड देन टे. सो इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देन कम्स FRC का मतलब होता है लास्ट के दो अल्फाबेट्स ER. ठीक है, पहले T फिर टे फिर ER, फिर VC मतलब टाई, TIE मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड लास्ट इज टीयर, TIER. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ लेट्स सॉल्व इट. Second option is vital capacity is equal to tidal volume plus inspiratory volume plus expiratory reserve volume. ठीक है, so ये option, so VC is tie, so ये option correct है. tie मतलब TIE. Next comes third, residual volume is equal to vital capacity minus इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अब आप जानते हैं ये सब कैपेसिटी है, ये सबसे बड़ा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू RV प्लस
IRV. ठीक है, हमने क्या किया, IRV को इस तरफ ले लिया, तो RV प्लस IRV. सो व्हाट इज हियर, हम लोग वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो वाइटल कैपेसिटी यहां पे क्या है, टाई. तो दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन. Then comes fourth one, tidal volume is equal to inspiratory capacity minus inspiratory reserve volume. So again what we can do, we will take up this unit and we will add TV plus IRV is equal to EC. So IC is equal to T plus TV plus IRV. This is also correct. Now let's see the option. हमें देखना है सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है. सो सेकेंड, ये वाले में भी सेकेंड करेक्ट है, ये वाले में भी सेकेंड करेक्ट है. फोर्थ जो है वो इन दोनों में भी करेक्ट है. ओके, नाउ एज द अदर टू ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो इसीलिए बी इज द सूटेबल आंसर. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली. मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू जस्ट राइट डाउन दीज रिलेशनशिप्स. सो इससे आप बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 8th MCQ we will talk about now. So two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. मतलब अगर बातें करते हुए हम क्यों कहते हैं जब भी आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो आपको बात नहीं करना चाहिए, आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेस में खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जो एपिग्लॉटिस है विच हैज टू क्लोज आवर ट्रैकिया, तो एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया को क्लोज करता है फॉर दैट सेकेंड्स जब आप फूड को स्वलो करते हैं. तो इफ दैट फूड विल ट्राई टू मूव इनसाइड द ट्रैकिया यू विल फील कफिंग. और ये कब होगा, जब एपिग्लॉटिस प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा. और एपिग्लॉटिस प्रॉपरली क्लोज इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज आप कुछ और सोच रहे हैं, आपका ब्रेन किसी और फंक्शन में इन्वॉल्व है. सो द करेक्ट आंसर इज एपिग्लॉटिस. सो प्लीज खाते वक्त कुछ नहीं सोचना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे चुपचाप खाना खाना चाहिए, खाना इंजॉय करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड हैपेंस. आपने जो भी पढ़ा है उस नॉलेज को यूज करके हम सॉल्व करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ WBC एंड ब्लड सीरम. ठीक है, हम ब्लड सीरम को कंसीडर कर भी लेते हैं, बट WBC नो. With the help of platelets and corpuscles. Corpuscles, they have not specified which one, RBC or WBC. With the help of RBCs and blood plasma, yes, this is the correct option, and D is with the help of RBC and WBC. So again, this is not there. तो आंसर जो है वो C होगा. Next is ascent of high mountain may cause altitude sickness in men. Prime cause of this is, तो जब भी हम एल्टीट्यूड पे माउंटेन्स पे चढ़ते हैं हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उसके पीछे क्या रीजन है. फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, decreased partial pressure of oxygen and decreased portion of oxygen in air. It is just अभी तक आपने पूरे चैप्टर में पार्शियल प्रेशर के बारे में ही पढ़ा है that due to the partial pressure of carbon dioxide and oxygen the exchange of gases will takes place, right? तो पार्शियल प्रेशर का सबसे बड़ा रोल होता है. सो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है. सो सी इज द correct option. So this is all about today's video. Same way in the next video I will come with the new chapter जिसमें again हम लोग 10 MCQs important MCQs solve करेंगे. So stay tuned, keep learning, be safe, and now it's a high time you to sit at home and study consistently. You have to maintain your timetable, you have to work hard, you have to practice hard, then only you will get the success. So see you in my next video. Goodbye.